حدیث پاک میں اگر تمہارا باپ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ صالحین اگر گھر میں ہو 7 پشتوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ ایک صحابی تجارت پر جا رہے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی۔ بیوی نے کہا ابھی اس حالت میں جا رہے ہو، بچے کی ولادت کے دن قریب ہیں، یہ بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے، کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ صحابی اس خاتون کے اپنی بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں یہ بچہ تو اللہ کے حوالے ہے، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑ دیا ہے، گھبرا مت میں جلدی آ جاؤں گا تجارت سے۔ گئے، وہ تجارت پر گئے اور ادھر بچے کی ولادت ہونے سے پہلے ہی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ درد ذہ میں، ولادت کے درد میں وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال ہو گیا، لوگ لے گئے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے۔ ان کو جب خبر ملی تو وہ جلدی اپنا سامان لپیٹ کر واپس پہنچے۔ بڑا غم ہوا کہ بیگم نے کہا تھا اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ، کاش میں ہوتا تو کچھ سہارا تو ہوتا۔ لیکن بہرحال غم کے عالم میں وہ قبرستان پہنچے اپنی بیوی کی قبر پر۔ جب وہاں قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ 3 دن گزر چکے ہیں۔ اب انہوں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک صحت مند بچہ وہاں پر ہاتھ پیر مار رہا اور چیخ رہا ہے، اور ان کی بیوی کی لاش بھی موجود ہے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور پوچھا یہ بچہ اس قبرستان میں قبر میں کہاں سے؟ غیب سے ندائی، اے بندے کیا جانے کے وقت تو نے اس بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا؟ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تیرے آنے تک۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا، امتحانات کی گھڑیوں سے گزارتا ہے، مگر اللہ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تمہیں کس قدر یہاں پر فراوانی ہے تم نے کبھی اندازہ کیا؟ اس رحمان کے جلوے تم نے دیکھے اس کائنات کے اندر؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک وہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے ہر گھڑی۔ اور اس کے سجدوں میں، اس کی عبادتوں میں جو تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو، قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑا پچھتاوا ہوگا۔ بلکہ بعض بندوں کا حال یہ ہے قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے شاید ہماری زندگی میں کوئی سکھ نہ ملتا، صرف دکھ میں ہی گزار رکھتے، تب بھی مولا اچھا ہوتا کہ تیری یاد میں تو رہتے۔ آج جو یاد نہیں کیے تھے دنیا میں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن۔ اللہ کو یاد نہیں کیے تھے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں، میرے پاس خالی وقت تھا میں یاد نہیں کیا، میرے پاس ٹائم تھا میں سجدہ نہیں کیا اس کی بارگاہ میں۔ قیامت کے دن سجدوں والوں کو دیکھ دیکھ کر کے تم رشک کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر تم رشک کر رہے ہوں گے۔ بلکہ قرآن میں ہے تم پوچھو گے کہ اے اللہ 1 ساعت کے لیے ہمیں لوٹا دے، نورد ونعمل، ہم عمل کر کے آئیں گے، 1 منٹ کے لیے تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم عمل کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وقت مکمل ہو چکا، تم دارالعمل سے آ چکے ہو، آج تمہارے سامنے میں یہ باتیں صرف تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس اللہ نے طاقت عطا کی ہے، قوت موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کے فرامین سے اس کے فرامین سے پشت پناہی کرتے ہو اور روح گردانی کر کے بھاگتے ہو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا، کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر پھر شکر بھی ہوتا ہے کہ مولا حد تک سلامت رکھا ہے۔ اس بندے کے پیچھے گردن کے پاس کوئی پھوڑی ہے، سر اٹھاؤ تو پیپ بہنے لگ جائے، کئی دنوں سے نہ موت آتی ہے نہ علاج مکمل ہوتا ہے، اس پھوڑی کی بیماری میں بڑی تکلیف میں۔ لیکن ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، اس آدمی کا جب عیادت کے لیے گئے تھے تو کہا کہ مولانا اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سر اٹھے اور ایک بار سجدہ کر لے، مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی۔ میرے عزیز تو اس کی خواہش ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جن کے سر اللہ نے سلامت رکھے، نہ کوئی پھوڑی نہ کوئی زخم، اور سر اکڑائے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہیں، کل کو اگر تمہیں کوئی چیز ہو جائے ترستے رہ جاؤ گے کہ مجھے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی۔
तरसते रह जाओगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे अजीज हो, कुछ लोगों को हमने बिस्तर पर देखा है जुबान भी हिलना बंद हो चुकी होती, जुबान भी नहीं हिल पाती, और उनकी शिद्दत से यह ख्वाहिश होती है जुबान हिले तो अल्लाह अल्लाह करूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं ज़ात जो हमें इन तमाम चीजों से नजात दे दे। इसीलिए कहा बुजुर्गों ने, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए। तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए इससे पहले तुम अमल में आ जाओ। और बुजुर्गों ने यह फरमाया, आज पूरी जिंदगी भर मौला एनी टाइम राजी है, एनी टाइम कि तू बंदा आकर मुझसे सुलह कर ले, बंदा आकर मुझसे सुलह कर ले, लेकिन बंदा अकड़ता है, इसे सुलह नहीं करना है। हजरत बहलूल दाना के मुतालिक यही तो कहा गया कि वो एक चौक पर बाजार में बैठे हुए थे, खलीफा का गुजर हो रहा था, पूछा क्यों बैठे हो बाबा? कहा बंदे मौला से रूठे हुए हैं, इनको राजी कर रहा हूं, आ जाओ, अल्लाह राजी है, जल्दी आ जाओ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। एक दिन कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, खलीफा ने पूछा यहां क्या कर रहे हो? कहा बंदे तो मान गए मगर वो नहीं मानता। मरने के बाद तो हर कोई मान रहा है। अब रब तबारक व तआला को मनाने लगाओ। तुम्हारे पास अभी बहुत गनीमत का वक्त मौजूद है, मौत से पहले बहुत गनीमत का वक्त मौजूद है। 5 चीजें मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजों को 5 चीजें आने से पहले गनीमत जानो। कौन सी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी है आज, बुढ़ापा आने से पहले उसको गनीमत जानो, अमल कर लो। दूसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। बीमारी में फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सेहत को गनीमत जानो। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, अपनी मालदारी आज कुशादगी है, इसको गनीमत जानो मोहताज होने से पहले। फकीर हो जाओगे उसके बाद कुछ नहीं कर सकोगे। चौथी चीज मेरे आका फरमाते हैं, आज हो सकता है फिराग का कबल शुगल का, यानी तुम फारिगुल हाल हो। आज उन नौजवानों से कहता हूं अभी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं आई, तुम्हारे मशगूल होने से पहले अपने फारिग वक्त को गनीमत जानो। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बाद में फिर तंगियां आएंगी। हम महसूस करते हैं जिम्मेदारियां कैसे बढ़ती चली जाती हैं और उसके बाद वक्त कैसे खत्म हो जाता है। नौजवानों को एहसास नहीं होता उनके पास कितना वक्त बाकी है, न बीवी का न बच्चों का, किसी का नहीं है, छोटे मोटे काम है, लेकिन उसको ये इंजॉयमेंट में गुजार रहे हैं। रात भर गेम खेलते हुए, रात भर इंटरनेट सर्च करते हुए तुम अपने फारिग वक्त को बर्बाद कर रहे हो। जब तुम मशगूल हो जाओगे ये दिन याद करोगे, वो दिन अच्छे थे। गनीमत जानो। 5वीं चीज जो सबसे बड़ी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहतमंदी को बीमारी से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, फारिगुल हाली को मशगूली से पहले, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। हो सकता है बीमारी में कुछ काम कर ले जाओगे, बुढ़ापे में कुछ काम, लेकिन मौत आने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। सारे अमाल मुनक़ता कर दिए जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे पास वक्त अता किया है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो इसको, और इसको बर्बाद ना करो। मैं उन नौजवानों को एक दर्स देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को हिलाक कर लिया, अपने आप को बर्बाद किया। तुम्हें हदीस पता है, क़यामत के दिन मैदान महशर में कितनी लोग होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला हर एक वहां जमा होगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक किसी को पांव हटाने की इजाजत नहीं होगी जब तक रहमान का यह सवाल पूरा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 सवालात होंगे, उनमें पहला सवाल का जवाब जब तक नहीं देगा कोई पांव नहीं हटा सकेगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या सवाल होगा? हुजूर फरमाते, रब ताला सबसे पहले पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया? यह पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए लोगों को 500 साल लग जाएंगे। कोई 300 साल, कोई 400 साल, 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते रहो, कहां कहां खर्चा किए। आज अगर मैं खड़ा होकर के आपसे पूछूं तो घंटे लग जाएंगे, पूरा दिन का हिसाब बताओ।
पूरा दिन क्या क्या किए, तुम्हें पूरी जिंदगी का पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को जिन्होंने बर्बाद किया, अपने आप को जिन्होंने तबाह किया, वो क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। आज भी वक्त है, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे ये कुछ बातें दहला देती हैं। तुमने अपने आप को तबाह किया, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। तुम नशे में अपने आप को बर्बाद करते रहे। लेकिन जानते हो, कई ऐसे हैं, मैं जनाजों पर शरीक हुआ, उनकी छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे रोते रह गए, बाप बड़ी जवानी में चला गया। क्यों गया? अपने आप को नशा में बर्बाद करके खुद ही मर गया। लेकिन उन बच्चों से हमेशा के लिए बाप का साया खत्म। घर में बैठी हुई औरत को बेवा करके चला गया। तुझे पता है, मौत तो अपने वक्त पर आती है, लेकिन खुदकुशी करने वाला ये जहन्नमी है। अपने आप को तबाह बर्बाद करने वाला जहन्नम में जा रहा है। नौजवानों, कुछ तो सोचो। जिस बच्चे को अगर हम ये कहें कि बेटा आ जा अल्लाह की तरफ, तो उसे ये लगता है हमारे अपने करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, पैसा मेरा है, वक्त मेरा है, लाइफ मेरी है। नहीं, तुम्हें पता नहीं तुमसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी औलाद की, तुम्हारे भाई बहनों की, सबकी जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें दर्द होता है तो पूरे खानदान को दर्द होता है, सबको तकलीफ होती है। इसलिए नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम्हारे पास जो वक्त है उसको अपने आप को बर्बाद करने में सर्फ न करो। आओ अल्लाह की तरफ। एक नौजवान की बात बता करके मैं खत्म करता हूं। अल्लाह की जात पर जब किसी को यकीन आता है तो मौला जीते जी जो उसे इनाम अता करता है। बगदाद में एक नौजवान था, बड़े पैसे वाला, बहुत मालदार था, बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां करता? अय्याशी में। कभी शराब खरीदे, कभी जुए पर जाए और कभी औरतों के मजे लेता रहे। यही उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जो जो करता था अपनी डायरी में लिखता भी रहता था, बेहया। जो किया उसको लिख करके भी रखे, आज मैंने इतनी अय्याशी की है, आज ये किया, आज जिना किया, आज फलां किया, डका, सब कुछ। एक दिन बाजार गया, एक औरत उसे पसंद आई। उसको कहा क्या मेरे घर चलेगी आज, पैसा दूंगा। तैयार हो गई, उस औरत को ले आया। पैसे पर आज की रात गुजारनी है, उसको बदकारी करनी है। औरत को घर ले आया और जैसे इसकी आदत थी अय्याशी की, घर को सजाया हुआ था, बंद किया। उस खातून को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो औरत आई तो उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो औरत पीली पड़ी हुई थी। पूछा क्या बात है, किस बात का बुखार है तुझे, तकलीफ है? वो औरत के आंसू छलक पड़े। कहा मैं फाहिशा और तवाइफ नहीं हूं, मैं बदकार नहीं हूं, मैं एक बेवा खातून हूं, मेरे 3 बच्चे पिछले 4-5 दिन से भूखे हैं, मुझे कोई मार्केट में काम भी नहीं देता, मैं काम करके बच्चों को कमाऊं खिलाऊं। आज शिद्दत भूख की वजह से बाजार में खड़ी थी और तू आ गया। मैंने सोचा तेरे साथ चली जाऊं, कुछ पैसा मिल जाए, बच्चों को तो खिलाऊं। लेकिन जब तू इस काम के लिए उभार रहा है तो मैंने आज तक अपना दामन साफ रखा था। मुझे डर ये आ रहा है कि अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मैं उसके सामने बेसतर कैसे हो जाऊं। उस खातून के जुमले उसके सीने पर ऐसे लगने लगे, ऐसे लगने लगे। उसने कहा अल्लाह की पनाह, जिसके घर में खाने को 4 दिन से कुछ नहीं, वो अल्लाह से इतना डर रही है, और मेरे घर में रिज्क की फरावानी है और फिर भी मैं अल्लाह से नहीं डर रहा। ये कैसी बात है? उसका दिल बदल गया, रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा निकम्मा, बहुत बड़ा कमीना, बहुत बड़ा गुनहगार। उस खातून से कहा मुझे माफ करना, मैं तेरे जिस्म को छूंगा भी नहीं, और तू अपने यतीम बच्चों के लिए जितना ले जा सकती है ले जा मेरे घर से। उसको दिया और रुखसत किया। घर बंद होने के बाद बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी इतनी बड़ी। गुनाहों की बेकरारी बहुत बड़ी होती है। ये बेचैनी जो दाग धब्बे लगा चुकी है, इंसान को कचोके देती रहती है। रोता रहा, रोता रहा। उसके बाद अल्लाह से कहता है कि अल्लाह, मैं माफ किए जाने के काबिल अगर नहीं तो आग भेज दे और मुझे जला दे, इसलिए कि इतने गुनाह कर चुका हूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो मौला हमारा खालिक भी है और रहमान भी है, वो सत्तार भी है, गफ्फार भी है। रोता रहा। उसके बाद सोचा कि साथ छोड़ करके निकल जाऊं, और गया। वो अपनी डायरी उठाया जिसमें रोज के करतूत खुद लिखता था। आज फाड़ के फेंक दूं, इसके बाद से मुझे कुछ करना ही नहीं, जीना ही नहीं।
जा करके उसने वो डायरी उठाया, पन्ने पलट करके देख रहा है तो किसी में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, सारे सफेद हैं। जो बरसों से अपने गुनाह लिख रहा था वो सब साफ है, कुछ नहीं है। वो घबराया, इधर उधर तलाशा, इसको क्या हो गया। गैब से निदा आई, जब कोई दुनिया छोड़कर हमारे पास आता है, दुनिया की किताब को जब हम मिटा सकते हैं, उसके नामे अमाल से भी सारे सय्यात को बदल सकते हैं। रब तबारक व तआला की जात पर जब बंदा यकीन करके आता है तो मौला उसकी पिछली जिंदगियां सब माफ करके उसे एक सही जिंदगी अता करता है। आज मैं यही दावत देना चाहता हूं, घबराओ मत, ना उम्मीद ना हो, परेशान मत हो। अगर हमसे खताएं हुई हैं, सब छोड़ करके आओ, वो रहमान के दरवाजे अभी खुले हैं। उसका तवक्कुल का दरवाजा बहुत बड़ा है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। कुरान कहता है फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह, अगर लोग मुंह फेर ले, ए रसूल आप कह दें अल्लाह मेरे लिए काफी है। कुरान में अल्लाह ने सिखाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है, क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनकी हर बुरी चीज को अच्छाई में बदल देगा, उनकी हर तकलीफ को अल्लाह ताला आसानी में तब्दील कर देगा। और रब ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं, मौला करीम हमारी टूटी बिखरी हुई जिंदगियों को अच्छाइयों में तब्दील फरमा दे, हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। हमने अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ियां मारी हैं, ए कदीर जब्बार खुदा उन जख्मों को तू सी दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों के धब्बों को तू साफ कर दे। मौला हमसे और हमारी खताओं से इतनी दूरी पैदा कर जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरियां हैं। ए करीम खुदा रहमर राहिमीन, जब तू अपने बंदों को धुलने पर आए तो जन्नत के गुसाले से उन्हें धुल दिया करता है। ए करीम खुदा, जुमा के इस मुकद्दस दिन में तेरे हबीब के शहदाई तेरे दरबार में जो मांग रहे हो सिर्फ इतना कि हमें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह तू अपना खौफ हमारे सीनों में अता फरमा। ए करीम खुदा, हमें नाजायज हरकतों से महफूज कर दे, बेहयाई और खुराफात से महफूज कर दे। हमारी कौम के बच्चे जो हमसे भटके हुए हैं, मौला इन सबको तू जमाले मुस्तफा का आशिक बना दे।